Assalamu alaikum everyone. Welcome to English is. Hope so all of you are doing great. Today we are going to discuss the most recognized and common types of pronouns. The most commonly recognized types of pronouns are these. First one is personal pronouns, second one is possessive pronouns, third one is reflexive pronouns, and the fourth one is demonstrative pronouns, fifth one is interrogative pronouns, sixth one is indefinite pronouns, and seventh one is distributive pronouns, eighth one is reciprocal pronouns, and ninth one is relative pronouns, and tenth one is impersonal pronouns. We have 10 different types of pronouns: personal pronoun, possessive pronoun, reflexive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun, and the last one is impersonal pronoun. Here we will see the first one, personal pronoun. What is personal pronoun? Personal pronouns are words that replace noun or noun phrase to refer to individuals or things that are directly involved in conversation or writing. बेसिकली जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो आप किसी भी नाउन के रिप्लेसमेंट में लिखते हैं या नाउन फ्रेज़ के रिप्लेसमेंट में लिखते हैं जब आप किसी इंडिविजुअल को रेफ़र कर रहे होते हैं किसी चीज़ के बारे में आप बात कर रहे होते हैं अपनी कन्वर्सेशन में या राइटिंग में बेसिकली। ठीक है, दे टिपिकली इंडिकेट हु इज़ परफॉर्मिंग और रिसीविंग द एक्शन इन द सेंटेंस। ये हमें बताता है कि सेंटेंस के अंदर बेसिकली कौन जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है या रिसीव कर रहा है उस एक्शन को बेसिकली। These are further classified into three types: first person, second person, and third person. Now we will see what is first person, second person, and the third person. Here we have first person pronouns, in which includes I, me, my, mine, we, us, our, ours. All of these are first person pronouns. जब भी हमारे पास किसी सेंटेंस के अंदर आई, मी, माई, माइन, वी, अस, अवर, ओवर्स किसी नाउन या नाउन फ्रेज को रिप्लेस कर रहा होगा इन वर्ड से, तो आपके पास ये फर्स्ट पर्सन में पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में जाता है। यूज्ड बाय द स्पीकर टू रेफर टू दमसेल्व्स और देयर ग्रुप। बेसिकली स्पीकर इसको इस्तेमाल कर रहा होगा, यानी कि बात करने वाला किसके साथ, ग्रुप, किसी भी ग्रुप, अपने ग्रुप के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है, या अपने आप के बारे में बात कर रहा होगा बेसिकली। तो इसको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की बात करते हैं कि उससे बिलोंग करता है। आई, मी, माई, माइन, वी, अस, ओवर, ओवर्स। बेसिकली फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस जो है वो स्पीकर यूज़ करता है या तो अपने आप के बारे में या फिर अपने किसी ग्रुप के बारे में, ठीक है, उसको रेफ़र करने के लिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है, जिसमें हमारे पास आई, मी, माई, माइन, वी, अस, ओवर, ओवर्स आता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, आई एम गोइंग टू द स्टोर। इन दिस सेंटेंस आई इज़ अवर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विच इज़ बिलोंग्स टू पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। आई हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। आई एम गोइंग टू द स्टोर। इस सेंटेंस को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो आई हमारा क्या है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन की कौन सी कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, पर्सनल प्रोनाउन से, ठीक है। एम जो है यहाँ पे हमारे पास लिंकिंग वर्ब है बेसिकली। गोइंग हमारा मेन वर्ब है। टू हमारे पास यहाँ पे प्रपोजिशन एज अ वर्क कर रहा है। दी हमारे पास डिटर्मिनर है। एंड स्टोर जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है विच इज़ नाउन। Next, we have second person pronouns. Second person pronouns include you, your, yours. These three words belongs to second person pronouns. ठीक है, used by the speaker to refer to the person or people they are addressing. Basically speaker इन words को use करता है किसी शख्स के बारे में या किसी को बेसिकली किसी को एड्रेस करने के लिए या किसी से मुखातिब होने के लिए दूसरे किसी शख्स से, तो वो इन वर्ड्स को यूज़ करेगा। you, your, yours. All of these are our second person pronouns. For instance, you are going to love this gift. In this sentence, speaker is referring to a person to whom he is addressing basically. You are going to love this gift. Here you is our second person to which speaker is referring, ठीक है। Now we have the third person pronoun. Third person pronouns include he, him, his, she, her, hers. All of these words are our third person pronouns. It, its, they, their, them, theirs, all of these are belongs to personal pronoun which is referring to third person pronoun.
It is used by the speaker to refer to someone or something outside of the conversation. बेसिकली ये वर्ड्स जो हैं स्पीकर यूज़ करता है आउटसाइड ऑफ द कन्वर्सेशन, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को अगर वो एड्रेस कर रहा है, ठीक है, या उसके बारे में बात कर रहा है, तो उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करेंगे जिसको हम थर्ड पर्सन प्रोनाउंस बोलते हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम, देयर्स। यानी कि ना तो वो अपने बारे में बात करेगा, ना सेकंड पर्सन के बारे में, ना बल्कि वो यहाँ पे थर्ड पर्सन को रेफर कर रहा है, ठीक है, उसके लिए वो ये वर्ड यूज़ करेगा। फॉर इंस्टेंस ही इज़ गोइंग टू द जिम। अब यहाँ पे स्पीकर जो है वो किसी और पर्सन के बारे में बात कर रहा है जो कि जिम पे जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड पर्सन है ही, जैसा कि हमने पढ़ा। अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसी फॉर एग्ज़ाम्पल जो सेंटेंस है ही इज़ गोइंग टू द जिम, इसमें आप आइडेंटिफाई करें कि आपके पास ये कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है। फर्स्ट तो हमारे पास ये पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी से बिलोंग करता है और ये थर्ड पर्सन है बेसिकली। जब ही आ जाएगा, हिम आ जाए किसी भी सेंटेंस के अंदर, ही, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देम एंड देयर्स, ऑल ऑफ दीज आर थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउंस है हमारे पास और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन से बिलोंग करते हैं। Here if we break down the sentence, he is our subject which is personal pronoun, is our linking verb which is connecting our subject to the predicate, and here going is our main verb, okay, to is preposition, these our determiner, and Jim is our object which is noun. Next we have possessive pronoun. What is possessive pronoun? Possessive pronouns are used to show ownership or possession. Basically ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपकी ऑनरशिप शो करते हैं, मलकियत शो करते हैं, या पोजेशन के बारे में हमें बताते हैं, किसी भी शख्स की किसी भी चीज़ के बारे में बेसिकली, ठीक है। हेयर आर सम एग्जांपल्स लाइक माइन, दिस बुक इज़ माइन। अब यहाँ पे माइन हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ये हमें यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है बुक की, कि ये किताब मेरी है, ठीक है। यूवर्स, दीज शूज़ आर यूवर्स, ये जूते तुम्हारे हैं, ठीक है। यूवर्स इज अवर पोजेसिव प्रोनाउन विच इज शोइंग पोजेशन इन दिस सेंटेंस। नेक्स्ट इज हिज, दिस कार इज हिज, ये कार उसकी है, ठीक है। हिज इज रेफरिंग टू पोजेसिव प्रोनाउन क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पे ऑनरशिप शो कर रहा है कि ये कार उसकी मलकियत है, यानी कि दिस कार बिलोंग्स टू हिम। हर्स, दिस पर्स इज हर्स, ये पर्स उसका है, यानी कि दिस पर्स इज बिलोंग्स टू हर, ये पर्स उसकी मलकियत है। नेक्स्ट वी हैव इट्स, द कैट चेजेज इट्स टेल, ठीक है। इट्स हमारा यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। बिल्ली अपनी दुम का पीछा करती है, ये ताक़ुब करती है, तो इसमें यहाँ पे इट्स हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। ओवर्स, ओवर दिस हाउस इज ओवर्स, यहाँ पे हमारा ओवर्स जो है बेसिकली ये बता रहा है कि दिस हाउस बिलोंग्स टू अस, ठीक है, ये घर हमारी मलकियत है, ये घर हमारा है, ओनरशिप बता रहा है, हमें पोजेशन बता रहा है। ओवर्स, तो ओवर्स हमारा क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। द लास्ट वन इज देयर्स, दीज टॉयज आर देयर्स, ये खिलौने उनके हैं, या दीज टॉयज बिलोंग्स टू देम, ये खिलौने उनकी मलकियत हैं। तो यहाँ पे देयर्स जो हमारा ये वर्ड है ना, ये हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स अगर माइन आ जाता है, यूवर्स आ जाता है, हिज, हर्स, इट्स, ओवर्स, देयर्स, ऑल ऑफ दीज आर आवर पोजेसिव प्रोनाउंस विच शोज पोजेशन, ऑनरशिप, ठीक है। वन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज माइन एंड यूवर्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। माइन एंड यूवर्स हमेशा जो है नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। आपके पास अगर पोजेसिव प्रोनाउंस आ जाते हैं माइन एंड यूवर्स, अगर आप किसी भी सेंटेंस के अंदर ये यूज़ करना चाहते हैं तो आपने हमेशा इन्हें नाउन से पहले इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माइन इज़ द रेड कार, सुर्ख कार मेरी है, ठीक है। माइन जो है ये हमने यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा, ठीक है। इज़ द रेड कार, सुर्ख कार मेरी है। माइन हमारा यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है जो कि हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा, और ये हमारा यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। इस हमारा लिंकिंग वर्ब है। दी रेड जो है, दी हमारा डिटर्मिनर है, रेड हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव है, कार हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि कार हमारे पास यहाँ पे नाउन है, एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर,
तो माइन जो है हमने इसको नाउन से पहले लगाया, यानी कि हमने बिफोर द रेड कार हमने माइन को लिखा, हमने ये नहीं लिखा कि द रेड कार इज़ माइन, ठीक है, हम लिखेंगे माइन इज़ द रेड कार। नेक्स्ट वी हैव हिज, हर्स, इट्स, ओवर्स एंड देयर्स आर यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब। हमारे पास जब भी ये पोजेसिव प्रोनाउंस हमने किसी भी सेंटेंस के अंदर यूज़ करने होते हैं, हिज, हर्स, इट्स, ओवर्स एंड देयर्स, ये हमेशा हम लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद हम इनका यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ हर्स, ठीक है, हमने यहाँ पे दिस हमारा क्या है, डिटर्मिनर है, बुक हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाउन है विच इज़ सब्जेक्ट हेयर, इस हमारा लिंकिंग वर्ब और इसके बाद हमने हर्स को इस्तेमाल किया, ठीक है। सो वेन एवर वी विल यूज़ हिज, हर्स, इट्स, ओवर्स एंड देयर्स आर, वी विल यूज़ देम आफ्टर लिंकिंग वर्ब। हम हमेशा इन्हें लिंकिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करेंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, बिफोर लिंकिंग वर्ब नहीं यूज़ करना। नेक्स्ट वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। Reflexive pronouns are words that refer back to the subject of the sentence or clause, indicating that the action is being performed on oneself. यानी कि रिफ्लेक्सिव नेम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि हम इस वर्ड को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट को रेफ़र करते हैं बैक टू द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट को ही शो कर रहे होते हैं कि यानी कि कोई भी एक्शन अगर किसी सेंटेंस में परफॉर्म किया गया है तो वो सब्जेक्ट ने ही परफॉर्म किया है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे आई माई सेल्फ विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं खुद प्रोजेक्ट को मुकम्मल करूँगी। तो हमारे पास यहाँ पे माई सेल्फ जो है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि सब जो एक्शन है वो परफॉर्म किया गया है बाय द सब्जेक्ट, ठीक है, एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट विच इज़ रेफरिंग बैक टू द सब्जेक्ट। हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको रेफर कर रहा है, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि ये काम जो है इस सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो सब्जेक्ट ने खुद परफॉर्म किया है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये हमारे पास यूज़ होता है कहाँ पे, दे आर यूज टू शो दैट द सब्जेक्ट इज़ आल्सो द रिसिपिएंट ऑफ द एक्शन। बेसिकली जो एक्शन है वो सब्जेक्ट ही रिसीव कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट इज़ डूइंग एक्शन, या डोअर भी जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, और रिसिपिएंट भी हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, एक्शन जो कर रहा है वो भी सब्जेक्ट है और जो इसको रिसीव कर रहा है बेसिकली वो भी सब्जेक्ट इटसेल्फ है। तो हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आती हैं, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ओवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, दैम सेल्फ, ठीक है। जब आप अपनी बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, आई के साथ हमेशा हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे, यू के साथ यूअर सेल्फ यूज़ करेंगे, ही के साथ हिम सेल्फ यूज़ करेंगे, शी के साथ हर सेल्फ यूज़ करेंगे, ठीक है, इट के साथ इट सेल्फ यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और वी जब हमारे पास एज अ सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम सेल्फ यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास दे होगा तो उसके साथ हम दैम सेल्फ यूज़ करेंगे, ठीक है। एज अ सिंगुलर के लिए हम माई सेल्फ यूज़ करेंगे, हिम सेल्फ यूज़ करेंगे, हर सेल्फ यूज़ करेंगे, इट सेल्फ यूज़ करेंगे। जब हमारे पास प्लूरल होंगे सब्जेक्ट उनके साथ हम ओवर सेल्फ यूज़ करेंगे, यूअर सेल्फ यूज़ करेंगे, दैम सेल्फ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। What is demonstrative pronouns? It is used to replace noun or noun phrase to indicate a specific person, thing or idea or to show proximity, ठीक है, proximity मतलब नज़दीकी, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बताना चाह रहे हैं कि वो कितनी हमसे करीब है, नियर बाय और डिस्टेंट, या कितनी हमसे फार अवे है, कितनी दूर है या कितनी करीब है। बेसिकली हम किसी भी चीज़ की प्रॉक्सिमिटी शो करने के लिए, यानी कि वो हमारे से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है या कितना हमसे करीब है, ठीक है, नियर बाय और डिस्टेंट थिंग्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आते हैं, टोटल 4, वी हैव टोटल 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस विच इंक्लूड दिस, दैट, दीज एंड दोज। अब दिस जो है वी विल यूज़ इट इन एज अ सिंगुलर, जब हमारे पास सिंगुलर थिंग्स होंगी या ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उनके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच इज़ यूज फॉर नियर बाय थिंग्स, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। फॉर इंस्टेंस दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है, ठीक है। अब हमारे पास इस सेंटेंस में हमें ये क्लियर है बात कि ये किताब मेरी है, यानी कि ये बुक जो है आपके करीब पड़ी है, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए आप दिस यूज़ करते हैं, ठीक है, और जो फार अवे होते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स के बारे में आप अगर बात करना चाह रहे हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर तो आप दैट का वर्ड यूज़ करते हैं। दैट इज़ अवर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच वी विल यूज़ फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, इट वर्क्स एज अ सिंगुलर।
फॉर इंस्टेंस दैट कार इज़ माइन, वो कार मेरी है, ठीक है। आपसे ये कार मतलब आप ये बता रहे हैं सेंटेंस के अंदर कि वो कार मेरी है, ठीक है। आप बता रहे हैं कि दूर है वो चीज़ आपसे, ठीक है, डिस्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव दीज इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल फॉर नियर बाय थिंग्स, ठीक है, या ऑब्जेक्ट्स। हम नियर बाय थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स के लिए दीज का वर्ड यूज़ करते हैं, दीज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, और ये एज अ प्लूरल वर्क करता है। जब हमारे पास मोर देन वन थिंग्स या मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हम बात करते हैं तो हम दीज को यूज़ करेंगे। फॉर इंस्टेंस दीज शूज़ आर माइन, ये जूते मेरे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेयर ऑफ शूज़ की बात की है बेसिकली, ठीक है, सिंगल शू की बात नहीं करें, हम शूज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन वन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है, थिंग्स हैं, तो इसलिए हमने दीज यूज़ किया प्लूरल, दीज शूज़ आर माइन। एंड नेक्स्ट द लास्ट वन वी हैव दोज वर्क्स एज अ प्लूरल, ठीक है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए या डिस्टेंट थिंग्स के लिए हम दोज का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्लूरल एज अ प्लूरल वर्क करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर। जब आप मोर देन वन थिंग्स या वन ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो आप दोज का वर्ड यूज़ करेंगे जो आपसे डिस्टेंट होंगी। नेक्स्ट वी हैव इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट अ पर्सन, थिंग और आइडिया। किसी भी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में या किसी आइडिया के बारे में जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। देयर आर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। द फर्स्ट वन इज़ हु, second one is what, third one is which, fourth one is whom, and the fifth one is whose. Who is going to the party? इस सेंटेंस के अंदर who हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी भी शख्स से, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, व्हाट इज़ आवर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच कलर डू यू प्रेफर, रेड और ब्लू, आप कौन सा कलर पसंद करते हैं, रेड या ब्लू। विच इज़ आवर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हेयर। होम डिड यू इन्वाइट टू द पार्टी, आप किसको पार्टी में इन्वाइट कर रहे हैं, होम इज़ आवर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुज कार इज़ पार्क आउटसाइड, किसकी कार बाहर पार्क की गई है, हुज इज़ आवर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऑल ऑफ दीज आर आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडेफिनिट प्रोनाउंस। Indefinite pronouns are words that refer to people, things or ideas without specifying a particular one. किसी मखसूस चीज़ या आइडिया के बारे में या किसी भी शख्स के बारे में, यानी कि नॉन स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो हम indefinite pronouns का यूज़ करते हैं। Indefinite pronouns include someone, something, anyone, anything, everyone, everything, no one, nothing, some, any, all, many, much, few and little. ऑल ऑफ दीज आर इंडेफिनिट प्रोनाउंस। जब भी किसी सेंटेंस में आपके पास ये सारे वर्ड्स दिए हैं और आपको कहा जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि विच प्रोनाउन इज़ इट, तो आप बताएं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जब आप इन वर्ड्स को इजीली मेमोराइज कर लेंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर कि ये प्रोनाउन की कौन सी टाइप है, इंडेफिनिट है, रिफ्लेक्सिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कौन सा है, ठीक है। Next we have impersonal pronouns. Impersonal pronouns are words that don't refer to a specific person or thing but rather to a general or neutral entity. ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक थिंग्स को रेफ़र करता है या पर्सन्स को रेफ़र करता है, बट ये हमारे पास एक जनरल आइडिया के बारे में जब भी हम बात कर रहे हैं, जनरल किसी पर्सन के बारे में कोई व्यू दे रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, ठीक है, या न्यूट्रल एंटिटी के बारे में हम बात कर रहे होते हैं किसी भी जगह पे, किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो हम इम्पर्सनल प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। दे आर यूज टू एक्सप्रेस अ जनरल आइडिया और कॉन्सेप्ट विदाउट स्पेसिफाइंग अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और थिंग, यानी कि किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ को मखसूस किए बगैर जब हम एज अ जनरल व्यू देते हैं या एक्सप्रेस करते हैं कोई भी आइडिया या कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए हम इम्पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। दीज इंक्लूड्स इट, वन, दे। दीज आर अवर एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पर्सनल प्रोनाउंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर इट आता है, वन आता है, दे आता है, तो ये हमारे इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ये जनरल आइडिया को या न्यूट्रल एंटिटी को शो कर रहे होते हैं या एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ये किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग को रेफर नहीं करते। नेक्स्ट वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। Distributive pronouns are words that refer to individual members of a group or collection rather than the group as a whole. यानी कि जब आपके पास एक ग्रुप मौजूद है, ठीक है, या कलेक्शन मौजूद है किसी चीज़ की, तो उसमें से आप किसी मखसूस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एज अ होल नहीं बात कर रहे आप किसी भी कलेक्शन या ग्रुप की। उस ग्रुप या कलेक्शन में से फिर आप फर्दर उसमें से
वन थिंग, ऑब्जेक्ट या इंडिविजुअल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो उसके बारे में बात कर रहे हैं, उस ग्रुप या कलेक्शन में से किसी एक फ़र्द के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जब आप बयान करते हैं या बात करते हैं, उसको रेफ़र करते हैं या डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। दे आर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट अ स्टेटमेंट और एक्शन अमंग ईच ऑफ द ग्रुप, यानी कि हर इंडिविजुअल के बारे में, उस ग्रुप के अंदर या उस कलेक्शन के अंदर हर एक के बारे में इंडिविजुअली आप बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच का वर्ड हम बेसिकली हर एक के लिए स्पेसिफाई करते हैं, यानी कि अगर आपके पास एक ग्रुप है या कलेक्शन है किसी चीज़ की या कुछ लोगों का आपके पास ग्रुप है, ठीक है, तो आपके पास वर्ड ईच जो है ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच, एवरी, ईदर, नीदर, बोथ, वन एंड अदर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आर अवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इट टेल्स अस अबाउट इंडिविजुअल थिंग्स, पर्सन्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, वन स्टूडेंट इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट एंड एन अदर इज़ रिसर्चिंग। एक स्टूडेंट जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और दूसरा जो है वो रिसर्चिंग पे काम कर रहा है। इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, वन एंड एन अदर, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारे पास, यानी कि दो क्लॉजेज हैं ना हमारे पास, फर्स्ट वन स्टूडेंट इज़ वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये हमारे पास फर्स्ट क्लॉज है, एंड हमारे पास कंजंक्शन है, एन अदर इज़ रिसर्चिंग, ये हमारे पास सेकंड क्लॉज है। तो इन दोनों क्लॉजेज को हमारे पास कंजंक्शन हमने यूज़ की है, एंड जो इन दोनों को ज्वाइन कर रही है, और इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर आपके पास वन एंड एन अदर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। आपको बता रहा है कि एक स्टूडेंट जो है प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और दूसरा जो है वो रिसर्च पे काम कर रहा है, यानी कि एक ग्रुप है ये आपके पास, उसमें से उन्होंने एक एक पर्सन को स्पेसिफाई करके बताया है कि इस बंदे के बारे में आप ये बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लास टू द मेन क्लास। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडेंट क्लास जो आपके पास अलोन स्टैंड नहीं कर सकता, उसको किसी ना किसी और सेंटेंस या क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए, या अपना जो व्यू है या उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसे किसी और पार्ट ऑफ द सेंटेंस की ज़रूरत पड़ती है साथ, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट अ डिपेंडेंट क्लॉज टू द मेन क्लॉज, यानी कि आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है, उसके साथ आपके पास मेन क्लॉज है, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकता है, आप उसको कह सकते हैं मेन क्लॉज को, जो कि अकेला आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है आपको किसी भी सेंटेंस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी सेंटेंस में। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को बेसिकली ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एक डिपेंडेंट क्लॉज को और एक मेन क्लॉज यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप क्या यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। दे इंट्रोड्यूस एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन इन द मेन क्लॉज। आपके पास जो मेन क्लॉज होता है उसके बाद उसमें आपको नाउन के बारे में बेसिकली ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं, ठीक है। And the next we have the reciprocal pronouns. Reciprocal pronouns are words that express mutual action or relationship between two or more people or things. बेसिकली रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो या दो से ज़्यादा लोगों या चीज़ों के दरमियान में बाहमी रिलेशनशिप या उनके एक्शन को शो करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच अदर, वन एंड अदर, ईच अदर्स, वन एंड अदर्स, ठीक है। फॉर इंस्टेंस दे शेयर्ड ईच अदर्स टॉय। In this sentence each others is our reciprocal pronoun। इस सेंटेंस में आपको ये बता रहा है म्यूचुअल शेयरिंग के बारे में बता रहा है कि यानी कि उन्होंने अपने खिलौने एक दूसरे से शेयर किए। होप सो यू विल लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर टिल देन। अल्लाह हाफिज़। Examples of relative pronouns are who, whom, whose, which, that, when, where and why। ऑल ऑफ दीज आर अवर रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस में हमारे पास विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। द बुक विच इज़ ऑन द टेबल। इन दिस सेंटेंस द बुक इज़ आवर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। विच इज़ आवर रिलेटिव प्रोनाउन। इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। वो किताब जो मेज़ पर है वो मेरी है। इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। दिस इज़ आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। आपके पास द बुक जो है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, दिस पार्ट इज़ आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, एंड विच इज़ आवर रिलेटिव प्रोनाउन विच इज़ कनेक्टिंग बोथ ऑफ दीज सेंटेंस।